Board. Okay, warm welcome to session 22 of Environmental Chemistry and Fundamentals of Environmental Engineering. So in last lecture, when I signed off, we were talking about pesticides, right? So why not? I think that would be a great idea if you could share some of the points um, so that I could write them here that what we were actually discussing before I left. Okay, so it was all about pesticides. So let's reflect back. Okay, let me take a pen and then where is the cursor? I'd say, there it is. No, yeah, I got it. Okay, so pesticides and your thoughts. Very quick review of our lecture. Okay, I think we started with a poll and I gave you a home task. It was to list, uh, household insect repellers and फिर आपको काम दिया हुआ था कि you need to find their principal ingredient. ठीक है, ये आपका होम टास्क था. And then, whether how it is environmentally free or environmental या health effects भी हमने कहा था कि उसको हम देखेंगे, right? And then in pesticides, we exclusively talked about insecticides. And in insecticides, we talked about organochlorine compounds in quite detail. And we said that many of them are unfortunately a part of the POPs, which are the persistent organic pollutants. Okay, but some of them are still in use. And we said that one of the very famous, this organochlorine is called DDT, which is banned in developed countries, but I think it is still used in India and Pakistan. I do not have any proof, but in rural areas, it is very hard to say, yeah, we use nahi hota hoga. Depends on its availability, but in underdeveloped countries or developing countries, it's still in use. Okay, so these were some of the things we discussed in our last lecture. Would you like to add any point? I think I forgot to mention some of them. Chat box is open for sharing of thoughts or to help me reflect back to our previous lecture. Am I missing anything? अच्छा, जो कंपाउंड अभी भी यूज हो रहा है ना इसमें, वो आई थिंक we specifically mentioned कि this is the compound basically. For example, it's a benzene ring, and then it has substituted. Remember that if we draw this benzene ring, there is always carbon. These are carbon-carbon bonds, right? But we show them as, and at every carbon is bonded with a hydrogen. Okay, it is bonded with hydrogen. Okay, and then there are alternate double bonds. So if one of these hydrogens is not one, two hydrogens are replaced with chlorines, we get this, and we like to
number these carbon atoms 4, 5, 6, and we'll say that we have 1 and 4 dichloro and benzene. Easy, इनकी नेमिंग इजी है, ठीक है. और ये जो है ये अभी भी यूज होता है. इट्स ए डिओड्राइजर इन वॉशरूम्स, यूरिनल, और then it is also a component of many insecticides. Okay, what's there for today? We are starting with the toxicology, principles of toxicology. Environmental toxicology is a very important field. It's a totally separate area of, under discussion. And we can, in fact, offer a 3-credit-hour course on the toxicology or environmental toxicology. It's a very important field. But let me just give you, since we are talking about pesticides and their adverse health effects on living organisms, so I think we should talk or at least mention some of the basics of toxicology. Okay. So toxicology is what? Basically, it is the study of what? Of course, the harmful effects of substances on living organisms. Okay, so these are the harmful effects of substances. Okay, and of course they are on living organisms. So how do we do that? Actually, we inject or feed animals with these substances and then study how their health is affected. How their health is affected. So this is how we do that. अच्छा, इसमें अमूमन 2 तरह की हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं. There are 2 kinds toxicology. First is called the acute kind of toxicology, and the other is chronic. So acute is basically a sudden and high intake of any chemical or harmful substance. So it's a sudden high intake. ठीक है? For example, अगर accidentally कोई urea, let's say, खा दे. I remember a very interesting incident when I was a kid. I do not know, पता नहीं आपको भी थी ये habit या नहीं, but I used to have this habit of eating sugar from my kitchen. So I think because of some construction, we moved our kitchen, and then we had this whole bag, 40 kg bag of sugars at one place, and there was another which was filled with urea. And I went to that place and, take a whole, क्या कहते हैं उसको, एक मुट्ठी भर, handful of, अपनी तरफ से मैंने शुगर उठाई और वो मैंने सारी मुंह में डाल के चबाते हुए बाहर निकल गया. थोड़ी देर में मुझे एहसास हो गया कि भाई ये जो है ना, वो ये तो शुगर नहीं है, ये तो यूरिया. तो मैंने उसको निगला तो नहीं था, लेकिन ये है कि इट वाज स्टिल दैट इन माय माउथ. और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने उसको फेंका बाहर और बताया तो नहीं किसी को, लेकिन ये है कि मुझे 1 हफ्ते तक फिक्र लगी रही कि क्या पता क्या होगा. ठीक है. और बहाने से मैं जो बड़े मेरे सिबलिंग्स थे उनसे पूछता रहा कि भाई अगर कोई एक्सीडेंटली यूरिया खा ले तो उससे क्या होगा. So this is a kind of acute type of thing. तो सडन हाई इनटेक अगर हो जाए ना किसी चीज की. अच्छा, जो क्रोनिक है वो है कि it's a exposure over a long period of time. और ये अमूमन थोड़ा होता है, क्वांटिटी थोड़ी होती है. ठीक है, बट एक्सपोजर इज क्वाइट. यूरिया की टॉक्सिसिटी अगर हमें देखनी है तो हमें इसकी एक वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं LD50. Sadaf wants to ask whether it is toxic or not. So this is how we are going to define what is a toxic thing actually is, how we determine something is toxic or not. You remember the German saying which I told you in the last lecture, every substance is a poison. It all depends on its amount. ठीक है. तो sometimes ये
this definition is quite good. Or but in toxicology, we are going to talk about it, how we define toxicity of anything. ठीक है? अच्छा, so acute toxicity में दूसरी जो चीज है वो ये है कि there's a rapid onset of symptoms. ठीक है? और क्रोनिक में ये है ना कि आपको इतने जल्दी नहीं पता चलता, it takes time. So ये इस तरह से हम करते हैं. ठीक है? So environmental toxicology अगर देखा जाए तो वो इस यहाँ पे फॉल करेगी. ठीक है? Environmental toxicology, because if we say that somebody is exposed to arsenic in drinking water, वो एक दिन में तो नहीं होने वाला. Over the periods 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर वो पानी पीता रहे polluted with arsenic, then it's going to have some adverse health effects. They will not appear as at once, like in acute kind of toxicity. So acute हो गया और chronic. So we mostly will deal with the chronic type. अच्छा, इसके साथ टॉक्सिकोलॉजी के साथ एक और टर्म बड़ी यूज होती है, वो भी आई थिंक आई शुड डिफाइन, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. सो एपिडेमियोलॉजी हमने बहुत दफा I mentioned this term quite a lot in my previous lectures. So what is epidemiology? Do you have any thoughts about it you want to share? Okay, when you hear this word, what comes to your mind? Epidemiology. Again, chat box is a quite good thing. Yes. Sadaf says it's related to pandemic studies. ये pandemic से related नहीं है. Basically, what we do कि we select a group of people, ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि how you know कि we attempt to relate difference in disease rates. So we see what is the difference in disease rate, and two, difference in the substance which they are exposed to. Okay, so ये इस तरह से हम इस एपिडेमियोलॉजी की देखते हैं कि लेट्स से कि हम एक एरिया ले लिया हमने, लेट्स से कि एशिया के अंदर हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक के लेवल्स क्या हैं, और आर्सेनिक के लेवल्स जो चेंज हो रहे हैं तो उनका लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है. इफ वेदर दी जो occurrence of cancer है, is that increasing with the concentration of arsenic? So that would be an epidemiological study. ठीक है? So हमें पता है कि for arsenic it is confirmed by such studies that if one is exposed to high levels, high means above 100 ppm of arsenic in drinking water over, let's say, quite over several years, and then it can develop cancer. ठीक है? तो ये हमारे पास इतना प्रूफ है. इससे नीचे होता है या नहीं, एपिडेमियोलॉजिकल प्रूफ्स नहीं है. ठीक है? तो दिस इज एपिडेमियोलॉजी के वी सी हाउ दी we try to relate the differences in disease rate with the differences in the substance concentration to which the selected group of people is exposed. अच्छा, इसके बाद हम स्टडी इसके अंदर ये करते हैं कि किस किस तरह की टॉक्सिकोलॉजी के इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते किस तरह के. तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 क्लासेस. फर्स्ट इज कॉल्ड द म्यूटाजेंस. हम यूं कह सकते हैं कि क्लासेस क्या हैं इनकी. ठीक है? म्यूटाजेंस हो सकते हैं विच कॉज म्यूटेशंस इन डीएनए, और ये एक खतरनाक बात है
because these DNA mutations can then inherit. Okay. And then the other ones are the carcinogens, which cause cancer, of course. And third one is what we call the tetratogens. So these are the substances that that cause the birth defects in fetus. So these are the substances present in mother that may affect developing fetus. ठीक है, तो ये कुछ टॉक्सिकोलॉजी की जो बेसिक्स हैं वो हम इसमें देखते हैं. अच्छा, the very important thing here is to remember कि there are some problems जिन्हें हमें address करना पड़ेगा. For example, कि in order to determine the health effects of substances over quite a long period of time, or the effect of continuous exposure, it would be very time-taking. Okay, it's time-taking, and we also need a large number of animals because we always study these effects on animals. So practically, it is near impossible to determine the effect of every substance for a quite long time. तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए आपको, एनिमल्स भी ज्यादा चाहिए. तो इसका हल क्या हमने रखा हुआ? हल ये रखा हुआ है कि वी गिव ए हाई डोजेस टू एनिमल्स, और हाई डोज इतनी होती है कि जिसपे द इफेक्ट्स आर क्वाइट विजिबल एंड दे आर सब्सटेंशियल. ओके, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? वी एक्सट्रैपोलेट द डेटा. ठीक है, तो ये एक हमने कि हम वी गिव हाई डोजेस टू एनिमल्स, लेट्स से कि far above than the environmental. For example, अगर आर्सेनिक की कंसंट्रेशन है 10 ppb या 100 ppb और इस तरह की चीजें, लेकिन आप अगर रैट्स पे, if you are working on rats or experimenting rats, तो you give them, let's say, 50 milligrams. Okay, and remember कि ये जो डोजेस दी जाती है ना, they are always given per body weight. ठीक है, इसमें हम बॉडी वेट को हमेशा देखते हैं. इसका मतलब है कि जो डोज दी जाती है, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो डोज है वो हो जाएगी फिर किसमें? मिलीग्राम पर केजी के अंदर. ये यूनिट हम यूज करते हैं इसके लिए, पर बॉडी वेट हमेशा. इवन हम जो मेडिकेशन आम प्रेस्क्रिप्शन होती है ना, ये जो डॉक्टर देते हैं, तो वो भी बॉडी वेट के साथ ही देते हैं. ठीक है, हमेशा इसी तरह से इसको स्टडी किया जाता है. बच्चों के लिए अलग डोज है, बड़ों के लिए अलग डोज है. उसकी वजह ये है कि देयर इज अ डिफरेंस इन बॉडी वेट. ठीक है, तो ए मेडिसिन इज ऑलवेज गिवन पर इन मिलीग्राम्स पर बॉडी वेट. अच्छा, सो अब हमने देखा ये है कि इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर रिस्पॉन्सेस और देयर ससेप्टेबिलिटी टू ए केमिकल. ठीक है, तो इसी वजह से भी ये जरूरी है कि हम कुछ अल्टरनेट तरीका देखें, बजाय ये कि वी टेक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और उसके बाद कई सालों तक एक केमिकल लेके उस पर काम करते हैं. तो इसका जो तरीका हमने निकाला है वो ये है कि व्हाट वी डू, वी प्लॉट, वी डू सम डेटा, और वो जो डेटा है हम उसे कहते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. सो अल्टरनेट हमने ये देखा है कि अल्टरनेट ये है कि वी डू डोज एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स. ये पूरा एक कर्व है. मसलन इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम डोज को ले लेते हैं. ठीक है, और मैंने बताया कि डोज जो है वो मिलीग्राम पर केजी के यूनिट्स में होती है. एंड वाई एक्सिस पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ एनिमल और उनके अंदर जो भी ऑब्जर्वेबल इफेक्ट है वो हम देखते हैं, या मेजर्ड इफेक्ट. मेजर्ड इफेक्ट क्या हो सकता है? मसलन डेथ हो सकती है. ठीक है,
और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एज वी आर इंक्रीजिंग द डोज, आपके पास इंक्रीमेंट आ रहा है इनटू लेट्स से डेथ रेट, और फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं एक जो चीज हम यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं वो ये है एलडी। एक होती है जिसे हम कहते हैं लीथल डोज, यानी एलडी। तो लीथल डोज होती है कि वो कौन सी डोज है जिस पे जाके एनिमल जो है वो एक्सपायर कर जाता है। और एक होती है जिसे हम कहते हैं LD50। सो LD50 वो डोज है जिसपे लेट्स से कि दिस इज 100, तो यहाँ पे 50 होगा, राइट। सो वो डोज जिसपे 50% ऑफ द पॉपुलेशन डाइज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू दैट केमिकल्स इज कॉल्ड द LD50 वैल्यू। तो अब आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले जो सदफ का क्वेश्चन था कि इज यूरिया टॉक्सिक, तो वी हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, इसका मतलब है कि इसकी LD50 वैल्यू क्या है, इससे पता चल जाएगा। अगर एलडी वैल्यू इसकी बहुत कम है तो इसका मतलब है कि ये बहुत खतरनाक चीज है कि थोड़ी सी डोज पे भी 50% पॉपुलेशन मर जाती है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टॉक्सिसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कंपेयर वेरियस substances, lethal substances with each other with the help of dose, क्या कहते हैं हम इसको, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये जो प्लॉट है हमारे पास। अच्छा, समटाइम व्हाट वी डू, वी प्रेफर टू take the dose in log terms. और then we replot or reset this plot, और फिर उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन है वो किस तरह का आ जाता है कि now we have dose but that is in log scale, और यहाँ पे परसेंटेज आती है उसी तरह से of population affected। फिर हम देखेंगे कि इसमें ऐसे इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं? सो सिग्माइडल, ये इस तरह का जो रिस्पॉन्स है दैट इज अ सिग्माइडल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। और इसमें हम देख सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए डोज जहां पे द इफेक्ट इज मिनिमम, और फिर उसके बाद एक ऐसी भी वैल्यू होगी जहां पे देयर इज इफेक्ट, बेसिकली नो इफेक्ट एट ऑल ऑन द हेल्थ। अच्छा, तो ये हमने देखा कि इस तरह से करके हम इसे लिखते हैं। इसके लिए एक काफी सारी जो टर्म्स हैं वो यूज होती हैं। मसलन एक जो टर्म है उसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। सो थ्रेशहोल्ड इज द डोज बिलो विच नॉन ऑफ द एनिमल्स आर अफेक्टेड। ठीक है, सो हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। इसके लिए समटाइम्स एक और टर्म भी यूज की जाती है कि नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल। नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल, मतलब एक तो दूसरे से मिलती जुलती बातें हैं ये, इनको हम NOEL कहते हैं, NOEL। ठीक है, थ्रेश होल्ड और नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट, ये दो चीजें जो है ना वो काफी सारी हम यूज करते हैं। सो नाउ वी हैव WHO, और WHO फिर क्या करता है कि बेस्ड ऑन दी LD values, LD50 values, it categorizes the substances in terms of their toxicity into several classes। ठीक है, मसलन अगर देखा जाए तो मैं अभी आपको एक टेबल दिखाना चाहूंगा कि आई थिंक दैट विल एक्सप्लेन के
अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि दैट इज द क्लासिफिकेशन. We are showing basically two types of the classifications, the categorization. One is by WHO, World Health Organization, and other is by US EPA, ठीक है, United States Environmental Protection Agency. So WHO category में आप देखें तो it categorizes the pesticide class pesticides into three categories. ठीक है, तीन कैटेगरीज हैं. सो पहली कैटेगरी में देयर आर टू सब कैटेगरीज. मतलब एक है एक्सट्रीमली हैजर्डस, जिसका मतलब जिनकी LD50 वैल्यू लेस देन 5 हो, दे आर क्लासिफाइड बाय WHO एज एक्सट्रीमली हैजर्डस. ठीक है, जिनकी 5 से 50 है, दे आर कॉल्ड हाईली हैजर्डस. आगे कुछ एग्जांपल है, निकोटीन इसके अंदर आते. तो आपके पास एक्सट्रीमली हैजर्डस जो है ना पेस्टिसाइड्स, वो ये हैं. एल्डी कार्ब है, पैराथायोन है, मेथिल पैराथायोन है. आई थिंक ये सारे के सारे जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, जिनकी हमने बात नहीं की, बट नेवरदलेस दे आर निकोटीन को हमने मेंशन जरूर किया था. सेकंड कैटेगरी इज मॉडरेटली हैजर्डस पेस्टिसाइड्स. देयर LD50 वैल्यू इज फ्रॉम 50 to 500. ठीक है, इसके अंदर अगर हम जानते हैं किसी को, हाँ, अगर आपको नहीं पता तो वो ये क्लासें हैं. इनको देख के कुछ याद आता है आपको? परमेथ्रिन, पायरेथ्रिन, कोई घंटियां बजती हैं या नहीं? Do these names bell some rings? ओके, तो इसका मतलब है कि जो टास्क मैंने आपको दिया था, यू डिडंट वर्क ऑन दैट. अदरवाइज भाई, ये जो हैं, ये घर के अंदर जो आप यूज करते हैं ना इंसेक्टिसाइड्स, मसलन आपने, या मुझे नाम उसका किंग टॉक्स के अंदर भी है यही, मोर्टिन के अंदर भी यही चीजें. These are the categories of the substances. हाँ, एग्जैक्टली सदफ, एग्जैक्टली. सो ये जो है ना परमेथ्रिन जो है, और पायरेथ्रिन्स, दे आर इन दी ये जो किंग टॉक्स ऑफ मॉर्टिन वगैरह है. एग्जैक्टली, जबरदस्त. तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने काम किया है. ग्रेट. We are going to talk about them again in detail. So, Baki, there are other minor things maybe which are just descriptive. अच्छा, हम एक बात देखेंगे कि US EPA की जो कैटेगरी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है. वो ये करता है कि it doesn't differentiate between 1A and 1B by WHO. It calls them one. तो इसका मतलब है कि they are highly or extremely hazardous chemicals. ये इनको hazardous ही कहता है. ठीक है, और इसका मतलब है कि 5 से लेके 50 तक LD50 वैल्यू रखने वाले सारे के सारे अंडर US EPA कैटेगरी, they are one category. And second category is the same as WHO. और third और में इसने कर दिया है 500 to 5000 में slightly hazardous कैटेगरी है. और US EPA has introduced another category जिसमें 5000 से ज्यादा LD50 वैल्यू रखने वाले कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है. So that will be category 4 of US EPA for the hazardous pesticides. Okay, next is risk assessment. That's a very important thing. कि क्या होता है? So once we have the toxicological information of a chemical, what we do, we measure its risk. Yeah, we assess its risk, and this process is called a risk assessment. Or in order to do the risk assessment, we need three kind of information. First, we need to evaluate it for the hazards. So we need all the relevant information. For example, what is the type of toxicity associated? Is it acute? Is it causing cancer? Does it cause some birth effects? And then we need to find this dose response information, quantitative. ठीक है? So फिर उसके बाद
डोज रिस्पॉन्स भी डिफरेंट मोड्स के अंदर फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ओरल डोज देके देखते हैं, फिर उसके बाद स्किन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। अगर इसको वेपर्स इनहेल किए जाएं तो 3 तरह के जो मोड हैं वो क्वाइट कॉमन है एक्सपोजर के, वाया माउथ, ओरल, डर्मल जो कि स्किन का है, और तीसरा इनहेलेशन है। तो वी फाइंड द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। एंड द थर्ड वन इज कि what is the estimate of the potential human exposure to that chemical। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस रिस्क असेसमेंट के अंदर आते हैं। अच्छा, सो हम क्या करते हैं कि अमूमन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द थ्रेशहोल्ड लेवल ऑफ फॉर द मोस्ट सेंसिटिव मेंबर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी हम किड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेंट्स और किड्स वगैरह, हम क्या करते हैं अमूमन कि जो एनिमल स्टडी के अंदर हमारे पास नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लिमिट आई थी या थ्रेशहोल्ड वैल्यू आई थी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अमूमन बाय 100, और दैट विल बी बेसिकली द ADI वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक वैल्यू। ठीक है, सो दैट विल बी द मैक्सिमम डेली डोज जो कि टॉलरेबल होगी एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, उसे अगर डोज एक्सीड करती है तो दैट वुड हैव सम हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। थोड़ा सा डिफरेंस है, मसलन USCPA इसी ADI को वो टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज कहता है, RFD कहता है। ठीक है, तो एक तरह की 2 चीजें एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, सो दिस इज टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज। मसलन इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करना चाहें रिस्क असेसमेंट के अंदर, तो इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आ सकती है, आई थिंक देयर इज वन मेंशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास let's say कि 1 person drinks 2 liters of water daily. So water use है 2 liters, and the body weight of the person is 74 kg. ठीक है, तो अगर ADI है हमारे पास उसकी लेट्स से 0.0020 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, तो इसको फिर हमें बॉडी वेट के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ADI तो हमने कैसे फाइंड की थी कि एनिमल स्टडीज में जो भी हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू थी हमने उसको 100 पे डिवाइड करके ये वैल्यू फाइंड कर ली है। बट फॉर दैट पर्सन वी नीड टू फाइंड 0.002 टाइम्स 74। इस तरह से जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम लेट्स से इट इज 0.14, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट विल बी मिलीग्राम पर डे। ये क्या शो कर रही है? एंड सिंस इट वाज इन 2 लीटर वाटर, तो हम इसे 0.14 को डिवाइड कर देते हैं 2, तो 0.07 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पास आ रहा है कि दैट इज द एलोएबल कंसंट्रेशन। हम इसे क्या कह रहे हैं? एलोएबल कंसंट्रेशन ऑफ दैट केमिकल इन वाटर फॉर दैट पर्सन। ठीक है, इससे ज्यादा अगर बढ़ गई तो इसका मतलब है कि दैट वाटर इज नॉट गुड फॉर द पर्सन हु इज 74 kg। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन है। अच्छा, कुछ एजेंसीज ये कहती हैं कि आप इस फैक्टर को जो 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसको फर्दर डाउन लेके जाएं,
क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं, जो किड्स हैं, यानी जो मोस्ट वल्नरेबल आपकी पॉपुलेशन है, उसमें ये लेवल्स फर्दर कम होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी काफी सारी जो है ना वो डिस्कशंस चलती रहती हैं। ठीक है, कि इन डोजेस को कैसे सेट किया जाए। डिड यू गेट दिस पॉइंट कि एडीआई से हम कैसे मैक्सिमम अलोवेबल कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं? इट्स जस्ट कि हम बॉडी वेट को ले आते हैं, उसको कंसीडर करते हुए, और फिर टोटल जो पर लीटर है अमाउंट केमिकल का, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट कि उनको कैसे प्रोसीड किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इनको यहां से अच्छा, देन दिस टेबल शोज यू कि जो डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, हमने चूंकि इनकी बात नहीं की तो चलें, लेट्स लीव देम। ओके, now we are moving towards the pesticides that we obtain from natural resources। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वो ये है कि there are some plants that manufacture certain molecules, they synthesize some molecules which protect them or kill the insects, okay, which protect them from insects or they kill the insects। तो केमिस्ट ने ये किया है कि दे हैव आइसोलेटेड दीज कंपाउंड्स फ्रॉम दीज प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो पहली फेमस एग्जांपल आती है वो आती है पायरिथ्रिन्स। सो पायरिथ्रिन्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स जो कि दे आर ऑब्टेन्ड प्रिंसिपली फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ ए स्पीशीज, जिसे स्पीशीज ऑफ क्रिसैंथेमम्स कहते हैं, इसको क्रिसैंथेमम्स कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये कैटेगरी है। ईस्ट एशिया के अंदर ये फ्लावर आपके सामने नजर आ रहा है। बहुत सारे इसकी स्पीशीज हैं, दे डिफर इन देयर कलर ऑफ द फ्लावर एंड सो ऑन, बट वन ऑफ द स्पीशीज जो है ना वो यहाँ पे इज शोन हियर। सो दिस इज क्रिसैंथेमम्स। तो जो ईस्ट एशिया है, मैंने बताया चाइना में इट्स क्वाइट रिच। तो दीज पायरिथ्रिन्स, जैसा कि एक पायरिथ्रिन यूनिट आपको, ये टिपिकल पायरिथ्रिन है। ठीक है, इट हैज ए रैदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस लेवल पे शायद हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, तो बट इट्स देयर जस्ट टू शो यू। अच्छा, मसला अब ये है कि दे आर सेफ, पायरिथ्रिन्स आर वेरी सेफ टू यूज, बट देयर आर सम कंसर्न्स अबाउट देम। पहली बात तो ये है कि लाइट की सेंसिटिविटी है इनकी। ठीक है, दे डिकम्पोज इन लाइट, तो इसकी वजह से फिर जाहिर बात है इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि दे पैरालाइज इंसेक्ट्स। ठीक है, दे यूजुअली डू नॉट किल देम। ठीक है, अनलेस कोई और चीज उसके अंदर नहीं ऐड की, तो उनको पैरालिसिस कर लेते हैं उनका। तो चूंकि ये अनस्टेबल है सनलाइट में, तो हमने ये किया है कि वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने इनको सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है, यानी पायरिथ्रिन लाइक कंपाउंड्स वी प्रिपेयर, और दे आर बेसिकली यूज्ड इन मॉर्टिन्स। हम इनको पायरिथ्रॉइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, इनको पायरिथ्रॉइड्स कहते हैं, जो कि सिंथेटिक पायरिथ्रिन्स हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दीज आर दी सिंथेटिक पायरिथ्रिन्स, और ये इसके अंदर और मोर्टिन वगैरह के अंदर आपको मिलेंगे। इनकी निशानी ये है कि इनके नेम जो है ना, दे एंड इन थ्रिन्स। ठीक है, तो इससे का पता चल जाएगा कि भाई दे आर पायरिथ्रॉइड्स। मसलन परमेथ्रिन, परमेथ्रिन जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? मैंने भी इसका घर में मेरे पास जो है इंसेक्टिसाइड्स, मैंने उनको देखा था। सॉरी व्हेन आई हैव लिस्टेड
मोर्टिन लिक्विड के अंदर जो है वो एलेथ्रिन है, ट्रांस एलेथ्रिन है, और एस बायोथ्रिन है। तो इसका मतलब दोनों पायरेथ्राइड्स हैं। जो मोर्टिन इंसेक्ट किलर है स्प्रे वाला, एक तो है ना इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, जैसे मोर्टीन लिक्विड कहूंगा मैं, ठीक है, एलईडी होता है जो, तो उसके अंदर एलेथ्रिन है। जो ये वाला है इसके अंदर जो है, इस वाले के अंदर वो है ट्रांसफ्लोथ्रिन, और मैंने बताया ना थ्रिन जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि पायरेथ्राइड्स है, और सिफ्लोथ्रिन। अगेन थ्रिन, ये इसके अंदर मोर्टिन के अंदर। जो मॉस्पिल है ना दे वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा, समटाइम्स व्हाट वी डू कि वी ऐड पायरेथ्राइड्स के साथ साथ हम पिप्रीनॉयल ब्यूटॉक्साइड भी ऐड करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स डू हैव ए मैकेनिज्म, दे हैव सम एंजाइम्स जो कि इनहिबिट कर, जो क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का जो इफेक्ट है उसको नलिफाई करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम्स। तो हम पिप्रीनाइल ब्यूटॉक्साइड ऐड करते हैं इसके अंदर जस्ट टू इनहिबिट दोज एंजाइम्स, ठीक है। तो इससे उसकी जो एफिशिएंसी है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बेहतर हो जाए। अच्छा, हेर्बिसाइड से पहले आई थिंक आई शुड टेल यू अबाउट मॉस्पिल के अंदर जो कंपाउंड है। मॉस्पिल के अंदर होगा, या आप देखेंगे कि जो ऑफ है उसके अंदर भी है, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड बेसिकली डीट, ठीक है। जो डीट है दैट इज डाईएथिल, इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं कि दिस इज ए बेंजीन रिंग, और बेंजीन के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो हम इसे टॉलवीन कहते हैं, ठीक है, इसको टॉलवीन कहते हैं, बट इट्स नॉट टॉलवीन, इट्स देयर विद ए कार्बन डबली बॉन्डेड विद O, एंड देन इट इज विद N, और इसके साथ एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो इस तरह से लिखा जाता है ना, दिस इज बेसिकली CH3CH2, तो इसको हम कहते हैं ethyl group. So there are two ethyl groups, and this is basically amide type of linkage. CONH2 होता है, इसको हम कहते हैं amide. is a functional group, यानी reactive part होता है एक मॉलिक्यूल का, और इसके दो हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए हैं विद एथिल, तो इसे इसको कहते हैं डाईएथिल। इस कंपाउंड को डाई, मैं कॉमन नाम ही बता रहा हूँ, डाईएथिल टॉल्व अमाइड। तो आप देखेंगे हमने टॉलवीन का भी थोड़ा सा टुकड़ा लेके आए हैं, और अमाइड को भी हमने रखा हुआ है बिकॉज दिस इज एन अमाइड डाइड, तो इसको एब्रीविएट करके हम डीट लिखते हैं। अच्छा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या आपका गैस है, कैसे काम करता होगा? ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिपेलेंस, इंसेक्ट रिपेलेंस। अच्छा, बेसिकली हमारी जो स्किन है ना, उसमें से जाहिर बात है कि स्वेट की सूरत में या ब्रेथ की सूरत में वी emit certain chemicals.
ठीक है, उनमें से एक जो केमिकल है वो एक काइंड ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मुझे दीजिएगा। Okay, so these things, they basically what they do कि ये जो अल्कोहल है ना हमारे पास, मसलन एक अल्कोहल है 1-octene-3-ol, ठीक है, लेकिन छोड़ें 1-octene-3-ol, ये स्किन में से निकलता है 1-octene-3-ol। अच्छा, these insects can sense that, ठीक है, बड़े आसानी से। हाउ? विद द हेल्प ऑफ देयर olfactory receptors, ये जाके उनके साथ रिसेप्टर से बाइंड होता है और वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसी के साथ दे रीच यू बिकॉज यू आर सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स टू इंसेक्ट्स, ठीक है। तो वो उन सिग्नल्स को पकड़ के वो आते हैं। तो अब काम ये करता है डीट के बारे में, देयर आर कंट्रोवर्शियल थेरीज, मसलन अगर आप रिसर्च देखें तो डिफरेंट व्यूज मिलेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि इट ब्लॉक्स द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी इसको ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब है कि इट नो मोर सेंस द स्किन ऑयल्स, ठीक है, तो आपको रीच नहीं कर पाएगा। एक थ्योरी ये भी थी कि सिंस यू आर वी इमिट CO2, वी एक्सेल CO2, तो these insects can, mosquitoes can sense CO2, तो ये उस पे आते हैं, ठीक है। तो मॉस्पिल बेसिकली उनकी जो CO2 की सेंसिंग है वो रोकता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि दे बेसिकली सेंस CO2, ठीक है। तो एक तो ये है। एक मॉडर्न थ्योरी ये भी कहती है कि भाई इस तरह का कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये जो आप केमिकल्स यूज करते हैं, मसलन मॉस्पिल जो है ना, इट्स बेसिकली reduces the volatility of skin oils, यानी स्किन केमिकल्स की जो वोलेटिलिटी है वो कम, यानी वो वेपोराइज होके दे विल नॉट रीच द इंसेक्ट, ठीक है। लेटेस्ट रिसर्च यही कह रही है कि इसका मतलब है कि एनीथिंग अगर आप स्किन पे अप्लाई करें जो कि आपके स्किन के जो केमिकल्स हैं उनको वोलाटाइल, उनके वेपर्स बनने को रोक दे, एनी ऑयल इन प्रिंसिपल, तो दैट कैन ब्लॉक और दैट कैन रिपेल इंसेक्ट्स, ठीक है। मसलन आप मिंट, बहुत सारे नेचुरल इस तरह की चीजें, मसलन ये जो यूकलिप्टस ऑयल है, आप अगर वो अप्लाई करेंगे इट विल इक्वली वर्क, ठीक है। यूकलिप्टस ऑयल बिकॉज वो जो ही आपने स्किन पे लगाना है, स्किन के बाद अब आपकी स्किन में एक देयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड दैट विल अवॉइड द वेपोराइजेशन ऑफ द स्किन ऑयल्स। तो इस तरह से यू कैन insects can no more sense and reach you. Anisa wants to ask about do they keep the concentration at a value below this level or at this level exactly? At which level? मेरा ख्याल है कि ये शायद पुराना क्वेश्चन था. I mean from the previous topic. Okay, I'll get back to you. ठीक है, मैं just let me finish this one and then I get back to you. So हम ये करते हैं कि ये दो तीन चीजें हमने डीट के बारे में देख ली कि this is diethyl tolvamide, ये भी हो सकता है, तो यूकलिप्टसाइल भी इक्वली वर्क कर सकता है इसके लिए। एक चीज कोई और थी वो अब मेरे जहन से निकल गई है कि आई वांटेड टू से समथिंग एल्स अबाउट ओके एनीवे। हाँ, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, अब ये है कि मॉस्पिल और मॉफ में, इसमें ऑफ में क्या फर्क है, तो अच्छा ये जो डीट था ना, ये 19 मेरा ख्याल 40s में ये बनाया गया था और फिर बाद में US आर्मी के लिए इन्होंने बनाया था इसको।
ठीक है, चूंकि वो जंगलों वगैरह में वियतनाम में इसको बड़ा यूज किया गया बाद में। ठीक है, लेटर इसकी जो फार्मूलेशन है वो चेंज की है यूएस आर्मी ने ही, और उसमें अब कोई पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं। वो पॉलीमर्स क्या करते हैं कि इसकी जो डीड की वोलेटिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, ताकि ये काफी देर तक आपकी स्किन पे मौजूद रहे और इफेक्टिव रहे। ठीक है, उसका जो रिलीज है ऑफ डीड, उसको चेक करते हैं, दे रिड्यूस इट्स वोलेटिलिटी एंड दैट्स व्हाई इट्स अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम्स ऑन स्किन एंड स्टे इफेक्टिव। तो ये इसमें तो अमूमन देखा जाए तो ये 70, कुछ लोग यूज करते हैं कि 75% सोल्यूशन है इन अल्कोहल। इसको शुरू में कहा जाता था बग जूस, ये कंपोजिशन यूज होती थी। लेकिन जाहिर बात है, मैंने बताया कि विद मोर इफेक्टिव। अगर आप उसको देखें ऑफ को, तो ऑफ इज अवेलेबल इन लोशन। मोस्पल तो लिक्विड है ना लोशन में, तो उसमें कोई और चीजें भी ऐड की जाती हैं जस्ट टू फ्रेग्रेंसेस एंड some other polymeric materials and surfactants। लेकिन इंग्रेडिएंट सबका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डीट ही है, डीट। इसको आई थिंक so I can get back to your question, Anisa, now. Can you repeat the question? You can switch on the mic and say. Yes, sir. I was talking about the value that we found for allowable concentration of that chemical in water for that person. That do companies or people, do they keep it at exactly that concentration, or do they keep it at a level below this? This is a guideline value. Okay. इसका मतलब ये है कि if anything above that value is present in water, that is not for use, that shouldn't be used basically। तो एक तरह की गाइडलाइन वैल्यू है कि जिसको जहन में रखते हुए आप देख सकते हैं कि whether the water is safe to drink or not for a person। ठीक है, तो मतलब again this is a guideline type of things जो कि दी जाती है। ऑफ कोर्स कि हमने देखा है इसके अंदर कि सिंस इट इज बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, सो हर एक के लिए फिर ये डिफरेंट वैल्यू होगी, राइट? यू कैन फाइंड योर ओन वैल्यूज फॉर डिफरेंट केमिकल्स based on the body weight। Okay, see, the last topic of today's is, let's talk about some of the herbicides, because these are the chemicals that kill weeds or plants, but interestingly they do not harm the desirable vegetation। Masalan, you can grow corn, soybean, cotton, और उसके अंदर जो unwanted किस्म के plants हैं, you can kill them with the help of these chemicals which are herbicides। So in 20th century, mostly inorganic compounds were used to weed killers। मसलन ये था सोडियम आर्सेनाइट, ठीक है, जिसकी पहले भी हमने जिक्र किया है कि ये यूज होता था। सोडियम क्लोरेट भी था, कॉपर सल्फेट को भी यूज किया जाता है एज ए फंजीसाइड। आपने देखा होगा कि आर्मी एरियाज में दरख्तों के जो ट्रंक्स होते थे वो ब्लू कलर के आपको कभी नजर आए होंगे। तो वो इसीलिए है कि दे हैव अप्लाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इट्स ए फेमस फंजीसाइड। अब आजकल जो है देयर आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। इनका फायदा ये है कि दे आर इफेक्टिव एज वेल एज सिलेक्टिव, बड़े सिलेक्टिव हैं। दे विल नॉट हार्म द मेन वेजिटेशन और डिजायरेबल वेजिटेशन। Okay, the most famous kind of these herbicides are called the triazenes। So triazenes basically, यहाँ पे भी हम इनको ड्रा करेंगे, इधर ही देख लेते हैं। मेरा ख्याल है मैं इधर बना लेता हूँ। तो ट्राइएजीन, ऐसा जो वर्ड है ना वो हमेशा नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है। और ट्राई का मतलब तीन, तो इसका मतलब है कि दैट्स ए थिंग विद 3 नाइट्रोजन्स। और इनफैक्ट ऐसा ही है। इसमें हमने ये देखा है कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, दूसरा नाइट्रोजन इधर है, तीसरा नाइट्रोजन इधर है, एंड देन अगेन it is then aromatic in nature।
तो अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर इधर होगा और फिर इधर होगा, एंड देन वी हैव सब्स्टिट्यूशंस हियर, यानी कुछ और ग्रुप्स लगे हुए, मसलन R1 इज हियर, R2 इज हियर, R3 is. So we are generalizing, we are not specifying what is there at R1, R2 and R3. ठीक है, they could be chloro groups. So triazenes हैं, तो how we, they are the derivative, herbicides are derivatives of this main chemical. What we do basically, we do substitutions, और substitutions करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो convert कर लेते हैं इसको into herbicides. For example, this is nitrogen, nitrogen, and इसको हम सर्कल लगा देते हैं, you know it's quite a habit. So अगर R1 के बजाय हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दें और R3 के बजाय हम एक ग्रुप लेके आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं NH2 ग्रुप है बेसिकली, और फिर उसके बाद हम इसे ऐसे करके लिख रहे हैं. अच्छा, this is another way of writing NH CH CH3 और CH3. तो बजाय CH3 और इस तरह से लिखने के we simply draw lines. Every line is a CH3 group. ओके, तो इधर से ये हो गया, और फिर इस पोजीशन पे NH है और फिर इस तरह की चीज, अगेन CH2 CH3. तो ये आपके पास जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है इसे हम एट्राजीन कहते हैं, एंड दैट्स अ वेरी फेमस हेर्बिसाइड. ठीक है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पूरी दुनिया में आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस हेर्बिसाइड्स जैसे यूज किया जाता है. अच्छा, जो एट्राजीन है ना, ये क्या करती है, इट बेसिकली ब्लॉक्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन अनवांटेड जो प्लांट्स हैं. ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स जो है वो अमूमन दो तरह के होते हैं, हर्ब्स होती हैं या श्रब्स होती हैं. हर्ब्स बहुत ही वीड टाइप मटेरियल्स हैं, टाइनी प्लांट्स होते हैं. श्रब्स जो है ना, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन हर्ब्स एंड ट्रीज. ठीक है, तो दोनों को they block the photosynthesis and this way they do not let the plants grow. अच्छा, इनकी आसानी ये है कि इन सॉइल दे कैन बी डिग्रेडेड, क्योंकि जब तक इनमें ये जो क्लोरो ग्रुप है ना ये है तब तक दे इफेक्टिव है. तो माइक्रोब्स क्या कर देते हैं कि इस ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट बिकम्स इनइफेक्टिव. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज destroyed in soil by microorganisms. कुछ और भी हैं, मसलन फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स हैं. फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स में बेसिकली लेट मी टेल यू कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप लग जाए ना तो हम इसे फिनोल कहते हैं. फिनोल बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस हर्बिसाइड एज वेल. सो इट इज बेसिकली, अगर देखा जाए तो इट्स एन एसिड. हाउ? बिकॉज इट हैज ए हाइड्रोजन विच कैन बी, अगर हम यूं लिखते हैं तो when it reacts with a base it loses this proton. ठीक है, and when it loses proton तो this oxygen is now negative. इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, तो this phenoxide can basically ऑफ कोर्स के यहाँ पे चूंकि सोडियम है तो ये ऐसे तो नहीं रहेगा, चूंकि सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, सो फिनॉक्साइड की बात हम करें. दिस फिनॉक्साइड can be used to make some herbicides. For example, कैसे कि if we have something like a मैं इसको यूं लिख लेता हूं कि
ये Cl है, क्लोरीन है, मैं यूं लिख लेता हूं। This is nothing. We have a simple thing which is called the acetic acid, which is there in vinegar. And this is a derivative. Acetic acid is written as CH3CH2. मेरा ख्याल है एक मैंने इसमें ज्यादा कर दिया है। So CH3 come on, this is blocked. So those compounds in which we have this group COOH are, इसे हम यूं करके भी लिख सकते हैं, they are acids, okay, and they are called carboxylic acids, मसलन acetic acid. So आप देख सकते हैं कि we have replaced one chlorine, one hydrogen with chlorine. इसको हमें क्या कहना चाहिए? Chloroacetic acid. So basically these two can react because हम ये कहते हैं कि this oxygen can attack on this carbon, and when it does that, it breaks this bond. तो basically आपके पास क्या हो गया है कि now you have an oxygen that is bonded with a CH2, CH2 and COOH. ये जो चीज बनी है ना, हम इसे कहते हैं फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो भाई ये जो बहुत सारी हेर्बिसाइड्स हैं वो इसके डेरिवेटिव्स हैं, फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। और उसमें अमूमन क्लोरीन ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। मसलन एक जो एग्जांपल होगी हमारे पास इसकी वो CH2COOH, इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं 2,4-D, ठीक है। एक वो है जिसमें बेंजीन ग्रुप के ऊपर 2 पोजीशन, ये मेन वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है। तो that will be basically position 1, 2, 3, 4. So हम इसे कहते हैं 2, sorry, ये this one is 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ये है 2, 4, 5T, बाकी complex नेमों को छोड़ें। So 2,4-D and 2,4,5T, these are the famous phenoxy herbicides because I can see clearly that they have this phenoxy group in their structure, and this gives them the, name phenoxy herbicides. 2,4-D जो है ये जो लीफी जो वीड्स होती है ना उनको किल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो 2,4,5 है ये मोस्टली श्रब्स के लिए, मतलब जो रोड साइड के हैं या इस तरह से, उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, रिमेंबर कि ये जो OC बॉन्ड है ना, दैट इज प्रोन टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, ये इनकी है, ठीक है। तो दे कैन बी एनवायरमेंटली डिग्रेडेड। कैसे? मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये HOH के साथ रिएक्ट करके H यहाँ बाइंड हो जाएगा, OH इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो यू कैन कन्वर्ट देम बैक टू अल्कोहल, फिनोल, ठीक है, वॉट एवर देयर कंपोजिशन इज। और प्लस ये जो था CH2COOH, दैट इज नाउ विद OH, ठीक है। तो दे कैन हाइड्रोलाइज इन वाटर।
ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, सो हाउ द पेस्टिसाइड्स डिग्रेड इन एनवायरनमेंट, आखिरी बात हम कर रहे हैं। तो वी डिफाइन their persistent environment with the help of their half lives, you know, और USEPA इनको क्लासिफाई करता है एज नॉन persistent pesticides. So their half life is less than 30 days. They totally decompose within 30 days. They will be moderately persistent if they last from 30 to 100 days, or they will be called persistent if their lifetime is greater than 100 days. तो ये 3 तरह के पेस्टिसाइड्स हैं हमारे पास। अच्छा, अच्छी बात यह है कि most organic compounds, including pesticides, because they are now the organic compounds, whether they are in air, water, or soil, they degrade to other compounds. ठीक है? एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज टू सम अदर कंपाउंड्स, and these other compounds finally break down into CO2, carbon dioxide, and water, which are totally the inorganic forms, and this process is called the mineralization. Okay, pesticides have been mineralized. ठीक है? कुछ जो मैकेनिज्म्स हैं वो हमें खुद भी पता है कि कैसे डिग्रेड हो सकते हैं। मसलन हमने देखा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अटैक्ड बाय द हाइड्रोक्सिल रेडिकल, जैसा कि एयर में हमने देखा था। तो एक तो हाइड्रोक्सिल आयन के अटैक से अगर इफ दे हैव लेट्स से कि Cl ग्रुप्स हैं तो दे आर चेंज्ड इनटू OH ग्रुप्स, तो इसका मतलब है दे आर इनइफेक्टिव नाउ। देयर आर मेनी अदर प्रोसेसेस, वो ये है कि दे अब्सॉर्ब फोटो लाइट एंड डिकम्पोज। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज कर जाते हैं। या स्टिल देयर आर अदर्स, मसलन देयर आर सम बेसेस एंड एसिड्स इन सॉइल which can catalyze the hydrolysis processes. Masalan, triazine जो हमने देखी है, that can be even hydrolyzed by soil, क्योंकि soil के अंदर it is aluminosilicates. तो if aluminum is hydrated, मसलन इसके साथ 6 water molecule लगे होते हैं, ठीक है, तो क्या करता है ये कि one of the water molecule basically decomposes, 5 रह जाते हैं फिर, और वो decompose होके H और OH बनाते हैं, यानी इसने प्रोटॉन, तो वो एसिडिक सॉइल होती है बेसिकली। दिस प्रोटॉन कैन बी टेकन अप बाय ट्राइआजाइन, और इसके जो हाइड्रोलिसिस है उसको वो कैटलाइज करता है। देयर आर मेनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो कि आयरन 2 कैटलाइज करता है, और इस तरह से दे डिस्ट्रॉय पेस्टिसाइड्स। Microbes also are capable of destroying pesticides. How? They do epoxidation. Epoxidation एक रिएक्शन है जिसमें हम ये करते हैं, मसलन मैं अगर यहाँ पे इसको लिख लूँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बेंजीन, and in benzene we have double bond. When oxygen adds to a double bond, this process is epoxidation. तो इसमें ये बॉन्ड 2 तो ऐसे ही रहेंगे, तीसरा जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ, दिस इज कॉल्ड एन एपॉक्साइड। ठीक है, दिस इज हाउ these benzene rings are basically destroyed. तो माइक्रोब्स ज्यादातर एपॉक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना ये करते हैं। सो दिस इज इट फॉर द पेस्टिसाइड्स एंड ऑल अदर स्टफ। वी हैव a couple of minutes, 3-4 मिनट हैं जिसमें हम आई कैन टेक द क्वेश्चंस। प्लान अब हमारा ये है कि वी हैव वन portion left, which is the soil pollution. Pesticides was basically a sub category, or you समझ लें कि it also has something with the soil pollution, because nevertheless pesticides are applied on plants and crops, और उसके बाद वो जाहिर बात है कि soil का ही हिस्सा बनते हैं। They can also leach to water. They also vaporize and go into the air. लेकिन तीनों के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है, बट सॉइल के अंदर भी है। तो सॉइल के अंदर भी पेस्टिसाइड्स को चूंकि हम डिस्कस करते हैं तो हमने इसको देखी है इस तरह से। क्वेश्चंस?
Okay, Manur wants to ask about the course. Okay, are we going to finish the course by 18th April? Actually, it all depends on us. To me, I think I will be done by 2 more lectures. ठीक है? अगर 2 और lectures भी आते हैं तो that's fine. 2 to 3 lectures. ठीक है? And so हमारे पास अगर हम देखते हैं, in principle we have 2 weeks, but if a university tries to finish by 18th, तो हमारे पास 2 ही lecture होंगे and we can finish it in 2 lectures too. I'll have to ask Dr. Ali as well, क्योंकि उनका एक solid waste management पे portion है, and ideally तो हमने ये कहा था कि 2 lecture वो लेंगे और 2 मैं लूंगा, and then we are done. यानी 4 lectures अभी हमने plan किए हुए. I will be talking about the soil pollution solely. और डॉक्टर अली जो है वो उन्होंने बात करनी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि प्योर इंजीनियरिंग का टॉपिक है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए. एक लेक्चर भी हमारा जो है वो बिकॉज ऑफ व्हेन डॉक्टर अली गॉट सिक, तो एक लेक्चर भी हमारा जाया हो गया था, वो भी बचा हुआ है. तो आई थिंक 3 तो मिनिमम लेक्चर आपके होने ही है. ठीक है, इन ईदर केस. तो लेट्स सी के हाउ थिंग्स गो.